Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, and Adab to all my respected viewers. Today, we are going to discuss a topic or a sentence which we normally use and we must avoid to use it. It is very commonly used. We use a word for anything, whether हमारी mistake है या किसी और की mistake है. When you are caught up, you have not been able to do a job or to please your boss, please your friends. You always, normally, very frequently, without thinking, you use a word sorry. And sorry should not be, as far as possible, used. Supposing you had to reach one particular place of your duty and you are late. Normally we go and tell that when you are caught late, you say, I am late, I am sorry. Please don't say. The same sentence can be substituted by to the other person you are late and the other person has been waiting for you. आपकी इंतजार कर रहा था और आपने सॉरी कह दिया, उससे उसकी समस्या को हल नहीं हुआ. दैट्स नॉट ए वर्ड विच सेंड्स ए वेरी गुड सिग्नल. You could have said, thanks for your patience, instead of telling sorry. Then you have done some mistake. And then, mistake pakdi gayi, again you say sorry. And sorry is a very common word people are using. And the mistake has been brought to you by your boss. And he is not there to listen to your sorry. He wants you to improve. He did not want to listen this word sorry. That word may irritate him. Rather, you could have said, I appreciate your feedback. ये मिस्टेक आपको कहाँ से पता लगी? उस आदमी ने आपको फीडबैक दिया और आप उसको जवाब देना सॉरी कहने से नहीं है, उससे उसकी समस्या हल नहीं हुई है. द बेटर ऑप्शन विल बी, आई अप्रिशिएट योर फीडबैक, आई विल करेक्ट इट राइट अवे. That is the most appropriate word. Third, सॉरी अगर आप किसी के पास गए and you want to discuss certain personal problem or an official problem without taking an appointment, just you entered his chamber and asked him, sorry to bother you. That will irritate him. He doesn't want you to bother him. You have just gone inside his chamber and told him, sorry to bother you. And you start talking your problem. The best thing is, say, do you have a moment to discuss my problem? And if he has got a time, he will surely give you. Instead of feeling hurt, he will try to cooperate and give you a time. Sorry. Then the next, fourth, we normally say, sorry, I did not understand. That is not his problem. That is not your boss's problem. अगर आपकी समझ में नहीं आया तो ये आपकी कमी है. वो कमी वाला आदमी उसको नहीं चाहिए. He doesn't want to listen sorry. I did not understand. That is irritating. Then instead you could say, could you please clarify that for me? उसको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपके समझ में नहीं आई जो बात, अगर आप उससे इंस्टेड ऑफ टेलिंग सॉरी, अब उसको ये करिए, कुड यू प्लीज अगेन क्लैरिफाई मी, आई कुड नॉट फॉलो इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी. देन नॉर्मली आपको कहीं पहुंचना था, आपको कोई काम दिया गया था, आप काम नहीं कर सके. दिस इज द फिफ्थ पॉइंट व्हेन वी से सॉरी, आई कैन नॉट मेक इट. सर मैं नहीं कर सकता. सॉरी
सॉरी से उसका पेट नहीं भर जाएगा, उसको जॉब नहीं मिल जाएगी, उसकी समस्या नहीं हल हो जाएगी। उसको अगर किताबें खरीदनी हैं तो आपके सॉरी कहने से उसकी किताबें नहीं आ जाएंगी। किताबें जब तक आप पैसा बाज़ार जा कर के बुक सेलर की शॉप में नहीं जाएंगे और पैसा खर्च के किताबें नहीं खरीदेंगे, तब तक उसको किताबें नहीं मिलेंगी। रादर यू कैन से थैंक यू फॉर द इनवाइट, आई विल बी देयर नेक्स्ट टाइम। आप गए, सर अब मैं, आई कुड नॉट मेक इट, हाउस हम नॉर्मली यूज करते हैं हाउ सून आई कैन मेक इट। सर मैं कल आ नहीं पाया, आपके यहाँ घर में फंक्शन था, आपकी पार्टी थी, मैं आपके घर आना था, मैं नहीं आ पाया। तो यू विल से सॉरी, यू विल से थैंक यू फॉर द इनवाइट। पहले तो आप थैंक्स कहिए कि आपने, उसने आपको इनवाइट किया। एंड सेकंड थिंग, आप उसको प्रॉमिस करिए आई विल बी देयर नेक्स्ट टाइम। सॉरी एक और बहुत मसाला हमने किसी का, अक्सर हम लोग एक चीज़ बोलते रहते हैं, हम लोग सभी बोलते हैं, सॉरी फॉर टेकिंग अप योर टाइम। आप आए हमारे घर में, हमारा टाइम लिया, हमने आपको टाइम दिया और उसके बाद आप जाने लगे तो आपने कहा थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम। कहिए तो दैट विल बी बेटर रादर देन सेइंग सॉरी फॉर टेकिंग अप योर टाइम। नो सॉरी यार, he might have been waiting for you. Rather you use this sentence, thanks for your time and insight. सॉरी नहीं कहना, प्लीज डू अवॉइड दिस वर्ड सॉरी। सॉरी आई डिड नॉट, एक और हम सातवां जो आज आपको सेंटेंस बताने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट वन। सॉरी आई डिड नॉट नो, आप नहीं जानते थे कि साहब आप यहाँ पर हैं, मुझे ये नहीं पता था, ये जो इंस्टांस हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कोई चीज़ हो गई है, ये कह देने से कि सॉरी आई डिड नॉट नो, रादर यू शुड से आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एंड गेट बैक टू यू। ये कह देने से कि सर मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं वहाँ से आपके लिए दवाई लेता आता, मैं आपके लिए टॉनिक लेता आता, मैं अपने साथ डॉक्टर लेते आता, इससे उसकी समस्या को हल नहीं होगा। इससे बेटर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसको मैं इसकी सच्चाई को, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द कल्प्रेट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द काज and I will surely get back to you. With this, we conclude our video by requesting all of you to avoid using the word sorry as far as possible. It is not absolutely possible कि आपको कभी आपके मुंह से सॉरी वर्ड ना निकलेगा और ज़रूर निकलेगा, बट जहाँ तक पॉसिबल हो एज ए प्रोफेशनल, ट्राई टू गिव ए प्रोफेशनल रिप्लाई एंड डेवलप योर पर्सनैलिटी। विद दिस आई कंक्लूड माई लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।